One apple fell, and we understand the concept of gravity. But millions of people died, and we never understood humanity. A train burns in Godhra. Within hours, flames spread far beyond the tracks. What followed was one of the darkest chapters in modern India. This was a time where humanity died, where killing others was the solution of their tension, of their problems. It all happened in February 2002. In February 2002, the Vishwa Hindu Parishad conducted a 100 days Mahayagya in Ayodhya. The Poon Ahuti Mahayagya was a major religious ceremony organized by the Vishwa Hindu Parishad VHP in Ayodhya in February 2002. It was a pivotal movement in the Ram Janmabhoomi movement and served as a primary reason why thousands of Kar Sevak, the religious volunteers, had travelled from Gujarat to UP, Uttar Pradesh. The primary goal of the yagya was to symbolize the final offering, Purna Ahuti, before the starting the actual construction of Ram Mandir. The VHP had set a firm deadline of March 15, 2002 to begin moving carved stones from their workshops to the disputed site of the commenced construction. On 27th February 2002, the Sabarmati Express was set on fire. 59 people were killed, and many of them returning from Ayodhya. The incident shocked the nation. But what came next would shake its conscience. On 22nd February 2002, the Sabarmati Express was going to Ayodhya with Kar Sevak from Ahmedabad, and after few days they were to return from the same train. They were to return on 26th February 2002, but train was not on time. On 27th February 2002, the train stopped at Godhra station. This was the point where everything turned into chaos. From the little distance from Godhra station, around 1500 to 2000 mobs were waiting for the train. The moment they reached the choke point, someone from the train pulled the emergency stop lever multiple times. The train stopped. Coach numbers S5 and S6 were the one with the most of the car saver, which was specially targeted. S5 and S6 were set on fire, killing 59 people, which included 27 women and 10 children, and injuring many others. After this train reaches Ahmedabad carrying the bodies, the news spread in Gujarat, and people were furious. People started protesting in the road about the incidents and were asking for the names of the culprits. Result of the incident. Across Gujarat, violence erupted. Homes burned, streets turned into battleground. Hundreds, then thousands lost their lives. The worst hit area included cities like Ahmedabad. Families were displaced. Survivors fled to a relief camp. Fear became normal. The war was against Hindu and Muslims. After seeing all this, many Hindu communities like VHP, RSS, and Bajrang Dal, etc., was also furious. So, for revenge, they started killing Muslims. This resulted in statewide Muslim massacre and 790 Muslims died. This was official figure, but the unofficial figures was much worse. On February 28, at Gulmarg society, mainly population consisted of Muslims. People walked and surrounded the whole society. In the society, Congress MP Ehsan Jafri also lived. After seeing the furious people, Ehsan called police multiple times, but no help showed for them. Ehsan even called police chief for help, but was left disappointed. After some time, the mob entered the society, resulting in burning of houses. About 18 houses were burnt to ashes, and 61, including Ehsan Jafri, were killed. But beyond the violence, questions began to rise. Could this have been controlled? Critics accused the state government, led by Narendra Modi at the time, of failing to act quickly enough. Allegations ranged from administrative failure to political advantage in polarization.
This is where the phrase dirty politics enters the conversation, not as a slogan but as a serious accusation debated for years. An operation was conducted by Gujarat government named as the Helka Sting operation to capture the culprits. People find it shocking that the burning of Sagarmati train was all planned by Hussain, Ibrahim and Nannu Mian. So was the massacre of the Muslims. This was also planned attack led by Babu Bajrangi. During the investigation, he stated that police and the government both helped me in this killing, and he was given life imprisonment. Maya Kondani, a new name, was also introduced. She was the reason behind the Naroda Patia massacre and was given 28 years of imprisonment. But due to lack of evidence, both of them were released freely. The special investigation team submitted a file report including a 1500-page and 1000 signature of eyewitnesses of the massacre. This file granted these people clean chit and were released from any criminal charges. The government stated action of the reaction, which means that Muslims first killed Hindus and now Hindus are killing Muslims. They even restrained Sanjeev Bhatt from taking any action to control the riot. नरोड़ा और नोड़ा पाटिया नरोड़ा गांव है और आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है नरोड़ा और नोड़ा गांव में। तो दोनों में हमें खूब खूब कुछ संख्या कम से कम वहाँ नहीं काटा होगा ना सब। नरोड़ा और नोड़ा पाटिया फिर उन्होंने लाशें उठा उठा के फेंक दिया। कुआ एक था, कुआ में डाल के तरफ दिया सबके। पहले तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, पहली बार मेरे को मिले ना तब। तो मैं बोला ये कहीं हमारे वहाँ बहुत पत्रकार और ऐसे तैसे आदमी आते तो मेरे को पूछते कि आप पाटिया खान? मैं बोला मैं पाटिया खान था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर एक हॉस्पिटल में दाखिल था। उनके ही थे ना सब। ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे। ट्यूबवेल तो थी हमारे पास उस टाइम, तो हमने मजा ही और था सब। और हमारे 4 कार्यकर्ता मर गए और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। उनके घर वर्कशॉप है, उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पार्टी है। तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा। वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभला। क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का FIR हो गया और FIR हो गया। देखो वहाँ था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने। हाँ, कमिश्नर ने दे दिया। कुएं में हम लोग कुएं में वो लोग आके इकट्ठा हो गए। ये सारे एक बहुत बड़ा खड्डा था स्वभाव जैसा। इधर से तो आए, इधर से चढ़ नहीं सकते थे। तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए। फिर क्या, वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को। मरते मरते बोले तू भी जा, तो तू काय को बचता, तू भी आ जा साथ। तो उसमें सब ज्यादा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर सब। उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कार्बा भरा। रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल वाला भी हमको फ्री दिया था, पेट्रोल डीजल। फिर वो जो थोड़े आगे जाते थे वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद के आगे सब वो इकट्ठा हो गए। फिर काटो मारो में चल भी गए, पूरा हो गया। नहीं तो लेकिन इन्होंने बच्चों को, औरतों को भी कायदे से काटा है। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो, काटो, जलाना, छोड़ो। अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इसलिए बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है। वो लोग, बहुत लोगों ने लूटने में रहे। अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या अपना ये सब लूटने में, थोड़ा रेप करने में भी रहे कुछ। रेप तो नहीं हुआ ऐसे, आपको किधर खींच के ले गए ना, वो बात तो अलग है। बाकी जब हम लोग चलते थे बरोबर, उसके पीछे टोला भी था ना, तो वो कहाँ रेप करने की जगह मिलेगी। उस टाइम तो ये होता खुला था कि जैसे आज चल रहे आगे हो रहा है, काटाकटी मारामारी हो रहा है। उसमें कैसा था कि ऐसे गली थी से, तो हम लोग घुसते, तो वो लोग घुसे, तो पहले सामना होता था, आमना सामना होता था। वो लोग की ताकत वो लोग लगाते थे। फिर कहीं हुआ, कहीं लगा, वो हुआ, फिर जैसे ताकत के घुस गए, 5-7 पड़ गिर गए, मर गए, तो फिर आगे चलते थे। तो उसमें क्या है कि बहुत
पर एक कोई कहीं कहीं से लड़की कहीं भाग रही है, कोई छाना ले गया उठा के, वो और बात अलग है। तो उस टाइम तो उस जगह पे तो सब, मगर जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान में हुआ, पाकिस्तान में उन्होंने कहा था, उस टाइम आप देखो ना सर, वो लाशें पड़ी थी, वो उस टाइम सीन खींचने जैसा नहीं था, कहीं किसी के हाथ में आ जाए। हमने एक वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी चला दिया था। हाँ, और मैं बहुत लोग जय माता जी करके भी भाग गए। हाँ। वो भी हुआ है हमको माल, जय माता जी, वो तिलक लगाया और बोले जय श्री राम, जय माता जी, भी हुआ है। वो बताइए ना, वो SRPF वाले ने कैसे बचाया? एक खाली मुसलमान था, SRP का बड़ा था, सैयद अली, उस जो अधिकारी था, और SRP के पीछे ही वो सब हुआ, कांड हुआ, ये मारा मारी का कांड हुआ। बाकी जो भागे ऊपर, जो खड्डे के ऊपर थे वो भागे, वो कंपाउंड, SRP के कंपाउंड में घुस गए। जो SRP के पुलिस वाले थे वो भगा रहे, जब तक वो गाड़ी लेके आ गया और उसने बोला कि सबको अंदर डालो, चलो, तो वो तो फिर वो कमांडो अधिकारी है, तो उसमें बहुत लोग बच गए, कम से कम 500 लोग वहां बच गए, नहीं तो दूसरे 500 लोग हो जाते। लेकिन उसके ऊपर भी गोली चलाई हम लोगों ने, उनको भी गोली चले, SRP वाले के ऊपर। वो भी हमारा साक्षी है सामने। वो भी फिर हमारा वो बना है, लेकिन बाद में फिर नरेंद्र भाई ने उसको प्रमोशन देकर शांत किया है। शांत। तो काम तो वो पाठ्यकांड का बहुत अच्छा हुआ सब, और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व परिषद संस्था है, हिंदू संस्था है साहब, राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए, पीट के आए, कैसा तो लगता है जब मुसलमान को मारते हैं तो कैसा लगता है? मजा आता है ना साहब। उसको मार के आए घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया, हमको पाठ्यक्रम जो हुआ तो कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे, आज कर दिया। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था, जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फाड़ गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए, तो बोलता है पुलिस वालों बोलता है, बोले इन्हें मारी ना, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ेंगे तो बयान देगा ना, बोले उसको तुरंत थोड़ा दूर ले जाके पूरा ही कर दिया, क्योंकि दादा ये जीता रहेगा तो बोले पुलिस की जीप पे घुसा था, बाहर निकला, कुछ नहीं किया। और बताइए, जिस दिन पाठ्यकांड हुआ वो तो अयोध्या से दिल्ली विल्ली आ गए थे, जहाँ भी आ गए आपको पता होगा। पाठ्यकांड जिस दिन उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पाटिया आए, बताइए। नरेंद्र भाई पाटिया आके थे, पर वो फिर वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो रहता है, तो बनाव पे नहीं आए, पर पाटिया आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में। पर जब भी रात को आधी रात के बाद दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा ना वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे, हिंदू में, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आया कि नहीं अच्छा किया और करो। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोलकिया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा 1.5-4.5 महीना हो गए, फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, कुछ नहीं, बोले जान ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी, वहाँ बाहर आ गए हम लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले, हिंदुत्व के लिए हम मरने तैयार है। हमारी एफआईआर में लिखा गया है, एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया, इनको बताया कि क्या होता है, कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिकार दे सकते हैं, हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। और फिर गोधरा कांड में
वैसे तो इंचार्ज राजेंद्र भाई थे, वो ट्रेन के इंचार्ज हुए थे। हाँ। मैं भी उनके साथ में सही इंचार्ज था। आप ट्रेन पर थे? नहीं, मैं नहीं गया, मेरे वो शुगर के प्रॉब्लम से अच्छा। मैं रुक गया था। हाँ। तो नाम था मेरा, रिजर्वेशन मेरे नाम का था। हाँ, लेकिन गए तो नहीं। जो कांड हुआ गोधरा कांड, तो उसमें 8 बजे तो यहाँ पुलिस आई गई थी मेरे वहाँ। हाँ। कि बोले रमेश भाई, मैंने बोला बोलो क्या है कि आप गए नहीं अयोध्या? मैंने बोला नहीं गए। वो उसी से मेरे को मालूम पड़ा, वैसे मेरे को पता ही नहीं था पहले। हाँ। तो मैंने क्या, वो तो वहाँ पे गोधरा में तो ऐसा हुआ है, S6 के डब्बे में आग लगा दी गई है, और वहाँ पे बोले उस चार्ट के अंदर जो रिजर्वेशन बने थे उसमें आपका नाम था। उनमें राजेंद्र भैया, आप, वो दूसरे 8-10 जने थे, ऐसा नाम थे। फिर 9:30 बजे वहाँ से फोन आया कि भाई रमेश भाई ऐसी बात है। राजेंद्र भाई का फोन आया है, राजेंद्र भाई का है। वो मेरे को बोले अब मैं बोला अच्छा, मैं कोई बात नहीं, 12 बजे तक गोधरा पहुंचता हूँ। तो उन्होंने बोला गोधरा आने की जरूरत नहीं, गोधरा दूसरे लोग आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल परिस्थिति वहाँ थोड़ा ठीक करना है। तो कोई बात नहीं। तो उस समय फिर रोने लगे राजेंद्र भाई, यार अपनी 7 लाशें गिर गई है यार, हम तो वनडे खेल रहे हैं, अभी वनडे खेलना है, बोला उन्होंने, वनडे खेलना है 600 को। मैंने कहा कोई टेंशन मतलब भगवान की कृपा है, हो जाएगा जो भी होने वाला है। फिर यहाँ पे लाशें वगैरह लाई, मैं भी रात को गया था, दृश्य देख के बड़ा, मैंने भी तस्वीरें देखी विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में। देखी, तो हम सब गए फिर रात को, और जो एक माहौल देखा वो बड़ा हचमचाने वाला था उस समय। उसमें क्या हुआ कि वो एक रिएक्शन सभी को दिखाया, सभी लोगों ने देखा वो माहौल, तो उन लोग को ऐसा लगा साला ये इतने वर्षों से। नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया। नरेंद्र भाई ने, ये पूरा डबगरवाड़ इलाका है, ये दरियापुर है, अभी तो हिंदू कम होते जा रहे हैं, मुस्लिम ज्यादा बढ़ रहे हैं। बस ये भी हमारा बॉर्डर है, ये मकान के पीछे ही सब वो इलाका है उसका। यहाँ भी उस समय गोधरा कांड के समय रात को करीब 11 बजे से दंगा चालू हुआ था लड़ाई, तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक हमने फाइट किया था यहाँ पे। अच्छा, उधर से भी फायरिंग करी उन लोगों ने? वो लोग नहीं, इस बार तो पूरा हिंदुओं के पलड़े में। इस समय मेरे को सौंपा गया था माधोपुरा, बगल में ही है, वहाँ करीब रायोटिंग के 127 केस हुए, 302 के उसमें करीब 15 केस थे। तो मेरे को सौंपा जाएगा, ये आप संभालो, ये आप जो भी है। लेकिन क्या हुआ था कि जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा इस बार। इसमें ये हुआ, और ये जो हम वीडियो कैसे भी बनवाया था वो सब दिखाया लोगों को, जगह जगह आना वगैरह सब किया। लेकिन वो क्या हो गया, ये एक आक्रोश होता है, वो मैंने कहा ना कि ज्वालामुखी जो दबा हुआ था ना, वो उसी समय एकदम फट गया काफी, लेकिन वो नुकसान तो बहुत हुआ है। नहीं, उस दिन तो वो तो फिर क्या हुआ कि गोधरा में तो वो कर दिया, नहीं तो हमारा तो प्लान था पूरा गोधरा जला देने का, मुसलमान सबको जला देने की, पूरा यही प्लान बनाया था। लेकिन फिर यही सब ये लेके आना, समाज संभालना, और फिर वहाँ पे सब वीआईपी की विजिट लग गई। हाँ, वो सब सोनिया गांधी आ रही हैं, सोनिया आई, वो सब आए। प्रतिकार तो बहुत किया, बहुत प्रतिकार यानी जबरदस्त। कितने लोग मारे गए? अब वो करीबन यहाँ अंदर में तो मेरा मानना है वहाँ तक तो करीब 60-70 लोग ही मरे। लेकिन जो प्रतिकार हुए वो ऐसा रहा, और फिर हमने ऐसे कालूपुर दरियापुर में क्या किया कि ये सब क्या करते हैं कि जहाँ भी जैसे इनका 3 इलाके हैं, 4 इलाके यहाँ, एक जुआपुरा, एक शाहपुर
एक दरियापुर और एक कालूपुर। ये लोग क्या करते थे कि सभी जगह से दंगे करके यहाँ आके छुप जाते हैं। मेरी तो इतनी खुल के बात हुई, हरीश भाई ने मुझे बताया कि कैसे हरीश भाई भट्ट हाँ, कि उनकी फैक्ट्री, पटाखे वाली फैक्ट्री में कैसे उन्होंने बम बनाया। सब बनाए, सब यहाँ पे तो यहाँ पे फिर यहाँ नहीं होते थे, हम तो फिर बाहर चले जाते। गोधरा जिस दिन हुआ उसके बाद अपनी विश्व हिंदू परिषद की कोई मीटिंग हुई, कोई रणनीति तय हुई, कोई मीटिंग हुई, अपनी कॉमन स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई कोई? नहीं, वो हुआ तो सही उस समय। ऐसा था कि भाई ये माहौल गर्म है और संगठन में काम आएगा, और उससे संगठन भी बड़ा था। एक समय ऐसा था। नहीं, जैसे जिस दिन गोधरा 27 तारीख को गोधरा हुआ ना, हाँ। तो उसी दिन या उसके बाद कुछ अपने जो शीर्ष नेता थे अहमदाबाद में, वो एक दूसरे के टच में रहे कि कुछ रणनीति बनाए, क्या हाँ, करें? कि कर्फ्यू लगा तो शायद मिल नहीं सकते थे या नहीं, हमारा तो कर्फ्यू तो आज की तारीख में भी लगा हो तो भी बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे गलियाँ कुछ ऐसी हैं जी। और नहीं है तो हम तो वैसे रोड पर भी निकल जाते हैं। उस समय हुआ 8-10 लोग बैठे थे एक जगह पे, जी। उसमें ये स्ट्रेटेजी हुई कि भाई बदला तो लेना ही है, और एक बार दिखा दो तो 8-10 साल की शांति हो जाएगी। पुलिस ने बहुत सही, इसीलिए तो ये मानव अधिकार वाले पर जो है उनको ये सब उन्होंने जो देखा इसमें कहा कि राजकीय नेताओं की भी भूमिका रही, पुलिस का कुल मिला के समाज के जो भी, क्योंकि पुलिस क्या था एक बात, तो पुलिस भी तो हिंदू थी। कहीं वो बोलते हैं कि हमारा कहीं नाम मत लेना, लेकिन बहुत सब 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 पुलिस वाला, सब पुलिस वाला। यहाँ तक कि नहीं कहना चाहिए लेकिन कारतूस भी बोला के नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया। नरेंद्र भाई ने उस समय क्या रिएक्शन था उनका जब गोधरा पहुंचे या गोधरा के बाद जब वापस आए? क्या था, उन्होंने बहुत उनको खुद को आक्रोश जबरदस्त था। संघ का स्वयं सेवक था, बचपन से वो तो आक्रोश उनका ऐसा, वो आए नहीं बाहर, लेकिन पुलिस वगैरह सब निष्क्रिय हो गई। जब जिस दिन गोधरा हो उस समय नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, नहीं, क्या उनका क्या उनका फेवरेबल था, लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूँगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूँगा कहीं भी, किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया। बंद हो गया 3 दिन के बाद? 3 के दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गए। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। Beyond politics, where people, lives lost, families broken, communities divided, for many survivors, 2002 never truly ended. This was all happened because of one hatred towards other. Many innocent were killed for no reasons. This is the value of human life. The Gujarat riots remain a reminder that when violence needs politics, the cost is human. And when truth gets buried in narratives, justice becomes harder to see. History doesn't just ask when happened, it asks